So today's session is on National Pension Scheme and its benefit. Basically, just I want to say, what is the meaning of National Pension Scheme? I'm not talking that only income tax benefit, which attracts you more and more for opting National Pension Scheme. What is the fundamental rules? What is the fundamental principles of entering into the systems, withdrawal systems, how it works? So, National Pension Scheme it is a market-linked pension scheme. Obviously, the fund which you put in are invested in the market, regulated by pension fund, regulated depository, administrative account. Indian citizen as well as NRI both can invest in the NPS scheme. Entry level is 18 to 60 years. So यहाँ पे corporate ये पूरे सेशन में मैं फोकस करने वाला हूँ corporate NPS, not an individual NPS. One single employee which is taken personally, वो मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ. Corporates are taking NPS on behalf of bulk employees. What are the features? What are the ways? What are the system? What documentation? सब एकदम डिटेल में बात करेंगे. कहीं भी कुछ भी नहीं समझ तो मुझे रोक देना, क्योंकि might be possible थोड़ा high level dose हो जाएगा. So there are 2 tiers in the NPS scheme, Tier 1 and a Tier 2. Let's understand what is the Tier 1 and Tier 2. Eligibility to open, same 18 to 65 years in both the case. 18 years से 65 years तक दोनों Tier 1 and Tier 2 दोनों ओपन कर सकते हैं. मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन पर एनम आपको मिनिमम एक कंट्रीब्यूशन तो Tier 1 में करना ही होगा, जबकि Tier 2 में you can choose not to make any contribution here. नहीं किया तो भी चलेगा. Tier 1 minimum amount of contribution in a year is 6,000, जबकि वहाँ पे है नहीं. Fund management charges both are more or less same. What are the charges? Fund management, account opening, account maintenance, which is a defined by regulator. Available asset classes. This is a very important topic actually, which I have bifurcated in the 3 parts, C and G for the both Tier 1 and Tier 2. So ये मैं फिलहाल पेंडिंग रखता हूँ. आगे के स्लाइड्स में आएगा what is the meaning of C and G. E means equity, C means corporate FDs and G means government securities. So जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे NPS में, that NPS authority will invest in the combination of equity, corporate FDs and a गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. ये डिटेल में बात करेंगे आगे वाले स्लाइड्स में. टैक्स बेनिफिट्स ऑन कंट्रीब्यूशन. Tier 1 के ही खाली बेनिफिट्स है, Tier 2 में नो बेनिफिट्स. व्हाट इज द बेनिफिट? कंट्रीब्यूशन टू NPS Tier 1 इज एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, मींस 1,50,000 80C के अंदर एन एडिशनल डिडक्शन ऑफ 50,000 80C CD 1B. So this is a very good advantage, and this attracts more and more all the employees to of the scheme and national pension scheme. Tax on withdrawal डिटेल में बात करेंगे, बट मैं आपको जस्ट broader level बोल रहा हूँ. At maturity only 40% of the corporate is exempt from the tax, and this entire corpus can be withdrawn, and it is a tax of IT slabs. So whatever your IT slabs, it will be taxed under either 5%, 10%, 20% or 30%, depends. But यहाँ पे 40% of the corpus is only allowed, is exempt from the tax. So let's understand what is the concept of NPS. NPS का concept क्या है? Just मैं आपको एक example देता हूँ, उससे आप ज़्यादा better understand कर पाओगे. ये tax on withdrawal and limit on withdrawals पे. Say for example, my monthly salary is 1 lakh rupees. So per annum is 12 lakh, assuming no bonus and no incentives. Out of that 1 lakh per month, my employer is putting 10,000 and I am also putting 10,000 in the NPS kitty. So 10 plus 10, 20,000 डाल रहे हम लोग. So जब तक मैं 60 years का हो जाता, ऑप्शन पर मेरे पास ऑप्शन है कि मेरे को कब तक मेरे को ये कंटिन्यू करना है. Tier 1 की बात कर रहा हूँ, Tier 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे टैक्स एडवांटेज है और 99% पब्लिक ऑप्ट करते हैं Tier 1.
तो 10,000 वो डालता है, 10,000 मैं डालता हूँ, 20,000 किटी में गया। अब वहां पे वो एक्टिवेट होगा फंड सर्टेन IRR। राइट नाउ द IRR rate is very attractive, 15% as compared to PPF. The rate is return on investment is only 7 to 8% in PPF, but NPS gives 15 to 20%, sometimes more than 20% also, but not below that, below 12%. So say for example at 60 years तक मैंने ये contribution start किया था at the age of example at the joining of my first job at the age of 28 years से लेके up to the age of 60 years मैंने ये same combination चल रखा। कभी ज्यादा जैसे जैसे मेरा सैलरी हाइक होता है तो मैं कंट्रीब्यूशन बढ़ाते जाता हूँ। एट द एज ऑफ 60 अभी मेरा रिटायरमेंट का टाइम आ गया, तो रिटायर के टाइम पे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन प्लस एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन प्लस एक्यूमुलेटेड में कितना अमाउंट है 1 CR। जस्ट हाइपोथेटिकली आई एम गिविंग वन एग्जांपल 1 CR। आउट ऑफ दैट 1 CR अभी आई एम ओनली eligible to withdraw 60% of the amount। second last line limit on a withdrawal। अगर आपने tier 1 चूज किया है और अगर मैं वो कैटेगरी में हूँ सो 1 करोड़ का आपको 60 लाख ही विड्रॉ करने मिलेगा, एंड बाकी का जो 40 लाख है वो दैट 40 लाख का आपको कंपलसरी एन्युटी परचेस करना पड़ेगा ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एन्युटी? आपको एन्युटी ऐसा परचेस करना है कि फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट, मतलब एट द एज ऑफ 60 से लेके टिल योर डेथ, एग्जाम्पल 85 तक है मेरा, सो 60 to 85 तक मैं एक एन्युटी परचेस करूंगा जिसको मेरे को मंथली पेंशन मिलेगा वहां से। दैट 40% आप चाहकर भी आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। दिस हाउ NPS सिस्टम वर्क्स। 1 CR का फंड है, आपको 60% ही एलिजिबल है विड्रॉ करने के लिए, 60 लाख। 40 लाख रुपीज कंपलसरी आपको एन्युटी ही परचेस करना है, कंपलसरी, और उसको मंथली आपको मंथली पेंशन आएगा जब तक आपका डेथ नहीं होता है, एंड आफ्टर द डेथ वो 40 लाख आपके लीगल हेयर्स को ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये NPS का पूरा सिस्टम। अगर टीयर 2 है एनी अमाउंट कैन बी विड्रॉ, क्योंकि आपने उसका टैक्स एडवांटेज लिया नहीं, बट यहाँ पे टीयर 1 में ऑलरेडी आपने बहुत सारा टैक्स एडवांटेज ले लिया, तो यहाँ पे उसने कैपिंग डाल के रखा है कि 60% ऑफ द अमाउंट कैन बी विड्रॉ, एंड आउट ऑफ दैट 60% ये तो एलिजिबल है विड्रॉ करने के लिए, उसमें ओनली 40% ऑफ द कॉर्पोरेट इज एक्सेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो यही एग्जांपल को मैं आगे बढ़ाता हूँ। से फॉर एग्जांपल माय NPS kitty is 1 CR, I am eligible to withdraw 60 lakhs. Out of that 60 lakhs, 40 lakhs is exempt from the tax. There is no tax on 40 lakhs. और balance 20 lakh का क्या? Balance 20 lakh is a taxable under slab rate. So they have given a 2 option. या तो आप टैक्स भरो 20 lakhs पे, या तो अगेन 20 lakhs का एक नया एन्युटी बाय कर दो जहां से आपको 20 लाख पे भी पेंशन मिलना चालू है, तो वो 20 lakhs पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। सो 2 ऑप्शंस, या 60 lakhs में विड्रॉ कर रहा हूँ, आई एम एलिजिबल, 40 लाख मैंने मेरे पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिया, सो नो टैक्स, you get tax on withdrawal at maturity, only 40% of the exempt from the tax. Balance 20%, 20 lakhs, either मैं मेरे टैक्स क्लेम में टैक्स पे करके निकल जाऊँ, या तो फिर कोई एक नया एन्युटी परचेस कर लेना है 20 lakhs। सो माय टोटल एन्युटी विल बिकम ये 20 lakhs प्लस 40 lakhs जो एलिजिबल ही नहीं था, अनएलिजिबल था 40 lakhs। सो माय टोटल एन्युटी विल बी 60 lakhs। ये सबको समझा? आई होप ये सबको समझा होगा। Funds in tier 2 can be transferred to tier 1, but existing fund is not allowed. Try tier 2 से 1 में जा सकते हो, but 1 से 2 नहीं हो सकता है। अब NPS goes, employee starts investing in NPS directly through employer। यहाँ से एम्प्लॉय स्टार्ट करेगा, एज पर सैलरी स्ट्रक्चर में होना चाहिए कंपलसरी NPS, नहीं है तो काम नहीं होगा। एम्प्लॉय इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेगा,
On exit, a portion of corpus comes to employee in lump sum and a balance to be invested in annuity. एग्जाम्पल को हम यहाँ पे रिफर करें तो अगर मेरा 60 years का एज है, portion of corpus comes to the employee means 60 lakh in lump sum. 60 lakh rupees I am eligible to withdraw in lump sum and balance with 40 lakhs to be invested in annuity. Employee starts getting pension depending on the annuity scheme selection. यहाँ पे annuity में भी बहुत सारी selection schemes है जो हम आगे देखेंगे. In case of a death of an employee, nominee or a legal heir can claim the corpus. जो भी 40 lakhs 40% जो भी गिटेगा है वो legal heir claim कर सकते हैं. This NPS started in December 2011. Before December 2011, only NPS खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही उसका बेनिफिट लेते थे. सो नाउ अभी पब्लिक सेक्टर को भी दे दिया. राइट नाउ मोर देन 50,000 कंपनीज हैव इम्प्लीमेंटेड दिस स्कीम. More than 6 crore employees are already under corporate NPS because of the rate of investment, 15 to 20%, whereas PPF is only giving hardly 7 to 8%. FDs are giving 6 to 7%. See, these are the corporates have already implemented NPS. Citibank, JP Morgan, HSBC, all the Fortune 500 companies, most of the companies, IBM, PwC, Nokia, Dell, Oracle, Amul, Glenmark, Maruti Suzuki, Volvo, they have already implemented NPS. मतलब अगर आप इस कॉर्पोरेट के अंदर है तो आपको कंपल्सरी एनपीएस लेना ही पड़ेगा. वैल्यू प्रपोजिशन फॉर एम्प्लॉइज. टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है. कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉइज डायरेक्टली मीन्स मैंने मेरे पॉकेट से अगर एनपीएस की कीटी में जो भी पैसा डाला है, नॉट एज अ सैलरी स्ट्रक्चर, आउट ऑफ द सैलरी स्ट्रक्चर. सैलरी स्ट्रक्चर मेरा जो भी था, एग्जाम्पल 12 लाख सैलरी स्ट्रक्चर है, उसके अलावा जो भी मैं सेविंग करता हूँ 12 लाख टैक्सेबल इनकम से मैं सेविंग कर करके मैं मेरी एनपीएस कीटी में एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन डाल रहा हूँ, उसका 1,50,000 एटीसी में तो मिलेगा ही. Over and above that, 50,000 is eligible for the tax deduction, ATCCD 1B. And a contribution by employee through company means this is an employer's contribution. Employer अगर मेरे को contribute कर रहा है 10% of the basic plus DA, and there is no upper cap, without any cap in terms of absolute value, is eligible for the tax deduction, ATCCD 2. So this is now eligible for new scheme as well as old scheme. इसको एक एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा कि हम लोग को क्या क्या बेनिफिट मिलता है. नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल. 2 सैलरी स्ट्रक्चर्स विदाउट एनपीएस एंड विद एनपीएस. यहाँ पे आप देख रहे हो विदाउट एनपीएस माय टोटल सिटीज इज 50 लाख रुपीज एंड विद एनपीएस इज ऑल्सो 50 लाख रुपीज. खाली एक बाइफर्केट किया हुआ है कि स्पेशल अलाउंस में से 2 लाख निकाल के एक अलग आइटम दे दिया इसको. सो इसमें कितना फर्क पड़ता है. टोटल उसको 2 लाख रुपीज, दिस 2 लाख रुपीज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, नॉट एम्प्लॉई. इट इज पार्ट ऑफ द सीटीसी ही है, बट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा. सो योर सीटीसी बिकम्स 48. सेम पीएफ जैसा ही है. 2,40,000 मुझे मिलता नहीं है, बट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है. हाथ में नहीं आएगा, बट आपके इनकम का वो पार्ट है, कंपनी का सीटीसी का पार्ट है. सो टोटल सीटीसी इज 50 लाख. जितना अमाउंट ऊपर ऐड किया, टोटल अमाउंट यहाँ पे नीचे डिडक्शन में मिलेगा. कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूशन अंडर एटीसीसी 2. अगर ये 2 लाख 2 करोड़ भी होता तो नीचे 2 करोड़ का डिडक्शन मिलता. एंड ओवर एंड अबव दैट एटीसीसी, मैंने अगर मेरी किटी में एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन में 1,50,000 डाला है एनपीएस, तो ये भी मिलेगा. एंड एडिशनल 50,000 इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन एनपीएस 50,000 और भी मिलेगा. सो टोटल 2,50,000 ये सिनारियो में मेरा बेनिफिट होगा. सो अगर वो 30% स्लैब में है एम्प्लॉय, तो टोटल टैक्स सेविंग हो रही है 75,000 रुपीज. आई होप सबको समझ में आया होगा. किसी को कुछ नहीं समझा तो मुझे अभी स्टॉप कर देना. चैट बॉक्स में आप क्वेरी रेज कर सकते हो.
No, this part is clear, Ankit. We can proceed. Okay, fine. What is the expense ratio? The most economical investment. अगर मैं यूलिप में इन्वेस्टमेंट करूँ, म्यूचुअल फंड टैप में करूँ, म्यूचुअल फंड इक्विटी में करूँ, यू कैन सी एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड जो होता है 2.5% to 1.5% या 2.75%. NPS is a very lowest cost category, 0.25%. Only 0.25% is a cost, entry cost and exit load. So as compared to other instrument, NPS is a very cost-effective instrument. See the returns. NPS monies are invested in equities, corporate bonds, and government securities. And these funds are giving return 17.37%, 11.75, and 11.34. I am taking a base of August 13 to May 17. And this rate has been increased substantially after the COVID. Equities gone beyond 20-25%, corporate bonds 12 to 14%, and government securities 11 to 12%. So average rate on investment is 15 to 20%. Now, whatever we invest in NPS, वो कहाँ पे पैसा जाएगा? जो हम बात कर रहे थे ECG, asset class E, asset class C, and asset class G. Equity में जाएगा, corporate bonds और fixed income, and government securities. 3 categories में divide होगा. Equity में maximum 50% का upper cap. आप 50% के ऊपर आप choose नहीं कर सकते. Corporate bonds and government securities, you have an option. आपको कितना डालना है? You can put 25-25, 30-20, 10-40. So आप जो भी अगर आप चॉइस कर रहे हो, अगर आप खुद के पास ले रहे हो ऑप्शन कि नहीं मुझे ही चूज करना है कि मेरा 50% यहाँ पे रहेगा और क्लास सी और क्लास जी का कमांड मेरे पास चाहिए कि मैं डिसाइड करूंगा किसमें कितना चाहिए, असेट मैनेजमेंट कंपनी डिसाइड नहीं करेगा, वो चॉइस को बोलते हैं एक्टिव चॉइस. एक्टिव चॉइस मतलब आप डिसाइड कर रहे हो. ये तो लॉक हो गया 50% इक्विटी. 50% से कम करना है तो अलाउड है. 40%, 30-20 यू कैन इन्वेस्ट लोअर अमाउंट इन इक्विटी. बट सी और जी में अगर आपको शफल करना है तो अगर आप खुद के पास करना है तो आप भी रख सकते हो. नहीं हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम इतने मार्केट के एक्सपर्ट नहीं है, हम वो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट जो कंपनी पूरा का पूरा फंड मैनेज कर रहे हैं हम उसके पास देंगे, तो वो होता है ऑटो चॉइस. सो इन्वेस्टमेंट इन लाइफ साइकिल फंड ये पूरा का पूरा ऑटो चॉइस होगा. बट ऑटो चॉइस कैसे? कोई एक एम्प्लॉय 28 ईयर्स का है और कोई एम्प्लॉय 50 ईयर्स का है, दोनों में वास्ट डिफरेंस है. 28 ईयर्स वाला बोलेगा कि आई वांट टू टेक अ हायर रिस्क, इक्विटी में मैं ज्यादा डालूंगा 50% तक. की 58-60 ईयर्स का एज वाला बोलेगा नहीं मेरे को इक्विटी 10% ही चाहिए. सी एंड जी आई वांट मैक्सिमम, नहीं लेना चाहिए. तो ये ऑटो चॉइस में रेगुलेटर ने क्या किया है, एक चार्ट ही बना दिया है एज वाइज. This less than 35 years, 35 or 35, less than 35 years, they will put 50% in equity, 30% in corporate scheme and 20% in a government scheme. जैसे जैसे एज बढ़ रहा है यू कैन सी इक्विटी में रेशियो कम होते जा रहा है और गवर्नमेंट में और सी में बढ़ते जा रहा है. 55 and above years, they will put only 10% in equity, 10% in corporate fixed income, and 80% in a very safe government security. So this is an auto choice. Already a option है. Employees switch between active and auto choice or reallocate portfolio in active choice once in a financial year. फाइनेंशियल ईयर में एक ही बार आपको चॉइस करने को मिलेगा, चाहे मैं करूँ या फिर ऑटो सिस्टम करूँ, ज्यादा आपको नहीं पाएगा. हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत लोग एनपीएस ले लेते हैं लेकिन आगे पता ही नहीं रहता कि कैसे एनपीएस वर्क होता है. ये सबसे बड़ा उसका ड्रॉबैक है एनपीएस का. Exit from the NPS. Employee can exit from the scheme after 10 years of account opening or attainment of retirement age, whichever comes first. Say for example, my age is 35 years, example. So मैंने 35 के ईयर में स्टार्ट किया है NPS. Either 10 years of service, मतलब 45
और माई एज इज रिटायरमेंट मीन 60 विच एवर इज अर्लियर 45 या 60 के पहले मैं एग्जिट ही नहीं ले पाऊंगा. Say for example, I want to exit at the age of 45. So this is the first option. Vesting age is less than retirement age defined by corporate. So I want to exit. मुझे नहीं है भरोसा एनपीएस, मुझे विड्रॉ करना है, इसकी बंद ही कर देना है, अकाउंट ही बंद करना है. सो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये आप उसके अंदर एंट्री लो, उसके पहले ही सारे लॉ ले डाउन करके रखे हैं. अप टू 20% ऑफ द कॉर्पस कैन बी विड्रॉन इन लम्प सम. मतलब एट द एज ऑफ 45 अगर मेरा टीटी के अंदर पैसा कितना है 1 लाख रुपीस, सो वो 1 लाख में मुझे 20,000 ही मिलेगा. 80,000 का कंपलसरी एन्युटी ही परचेज करना पड़ेगा, जिसका मुझे पेंशन चालू हो जाएगा 45 के एज से. Ankit, Any so issue? annuity का you're saying ना, तो that amount at age of 45 मेरा pension start हो जाएगा क्या अगर annuity में डाला तो? बिल्कुल. अच्छा. यहाँ पे दूसरा एक क्वेश्चन है, दूसरा एक लूप फॉल है, नॉट लूप फॉल, मैं बोलता हूँ ड्रॉबैक है. पहले ये सेकेंड वाले टॉपिक को भी देख लेते हैं. वेस्टिंग एज इज इक्वल टू रिटायरमेंट एज डिफाइंड बाय कॉर्पोरेट. अप टू 60% ऑफ कॉर्पस कैन बी विथड्रॉन इन लम्प सम. मींस 1 करोड़ अगर है मेरा तो 60 लाख में ले सकता हूँ, 40 लाख जाएगा एन्युटी में. ये दोनों में फर्क क्या है? सबसे पहले एनपीएस की किटी बनती कैसी है वो पहले समझते हैं. एम्प्लॉय शेयर मतलब मैंने जो स्टार्टिंग से 10,000 रुपया डाला था, एम्प्लॉयर शेयर मतलब उसने भी 10,000 डाला था, प्लस माई एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ओवर द पीरियड ऑफ 60 years, सब मिला के वो किटी का होता है 1 CR. बट से फॉर एग्जाम्पल 45 ईयर्स के एज तक मैंने उस किटी में उतना पैसा नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरेस्ट इतना नहीं होगा, डबल भी नहीं होगा. तो मेरी किटी में अभी फिलहाल जस्ट एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ 5 लाख रुपीज ही अंदर एक्यूमुलेट हुआ है. वो 5 लाख में 20% ऑफ कॉर्पस नहीं गिना जाएगा. एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन आपने कितना डाला है 5 लाख में, से फॉर एग्जाम्पल मैंने कैलकुलेशन कर स्टेटमेंट मंगवाता हूँ मैं उससे अथॉरिटी से, तो तभी हिसाब करके मिला 2 लाख आपने डाला है, 2 लाख एम्प्लॉयर ने डाला है, और 1 लाख interest हुआ है. This is a hypothetical example. 2 lakh is your contribution, means employee's contribution. 2 lakh is employer contribution, and 1 lakh is an accumulated interest. यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा कंडीशन डाल दिया कि इफ यू आर एग्जिटिंग बिफोर द रिटायरमेंट एज तो 20% ऑफ एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन ही खाली मिलेगा. सो पूरी किटी का 5 लाख नहीं मिलेगा, ओनली 2 लाख का 20%, मतलब कि 40,000 ही विड्रॉ करने को मिलेगा. बाकी का आपको 5 लाख माइनस 40 मतलब 4,60,000 का मुझे एन्युटी लेना है. यहाँ पे अगर वो सेम एग्जांपल होता 2 लाख प्लस 1 लाख एट द एज ऑफ 60, 5 लाख का 60% मतलब कि 3 लाख रुपीज मुझे विड्रॉ करने को मिलता था, और खाली 2 लाख रुपीज का ये एन्युटी में आ रहा है. आई होप सबको समझा होगा. किसी को डाउट है तो अभी मुझे क्लियर कर दीजिए. किसी को कोई डाउट है? Just clarify करता हूँ वापस से. So you are saying 20% वाला जो फर्स्ट केस है, यूज केस है, उसमें you are saying कि जो एम्प्लॉय साइड का रहेगा सिर्फ वो ही उसका ही 20% आपको मिलेगा. एम्प्लॉयर के एंड से जो भी गया उसका कुछ नहीं मिलेगा, वो पूरा एन्युटी में ही चले जाएगा. ओके, अच्छा, ओके, ठीक है सर. आगे बढ़ते. से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी मेरा एज ऑफ 60 हो गया, मुझे 60% ऑफ द कॉर्पस मेरे को मिलेगा. बट हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, मैं वो एग्जाम्पल को आगे बढ़ा रहा हूँ 1 करोड़ पे. 1 करोड़ मेरी एनपीएस की किटी है, 60 लाख रुपीज आई एम एलिजिबल टू विड्रॉ. बट दैट 60 लाख में भी 40 लाख ही खाली एग्जाम्प्ट है, ओनली 40 लाख ही एग्जाम्प्ट है. बाकी का तो 20 लाख इज टैक्सेबल अमाउंट. 40 लाख का तो मैं एन्युटी ले रहा हूँ, वो तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, दैट इज नॉट टैक्सेबल, क्योंकि वो मेरे हाथ में मिल नहीं रहा है. ऊपर का जो 60 लाख है उसमें भी खाली 40 लाख ही एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है. ये कहाँ लिखा था?
ये रहा tax on withdrawals. 60% is allowed, but only 40% of the corpus is exempt from the tax. So 1 crore में मेरे को 60 लाख मिला, but 40 रुपीज एग्जेम्प्ट है, तो बाकी के तो 20 लाख पर टैक्स लगेगा। अभी मुझे यहाँ पे कुछ टैक्स प्लानिंग करना है, तो कुछ ग्रे एरिया है क्या यहाँ पे? सो गवर्नमेंट ने उसमें ग्रे एरिया छोड़ा है कि वो क्या बोलता है, अगर तुझे 20 लाख पे टैक्स नहीं भरना है तो तू एन्यूटी ले ले, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मैं 40 लाख का करूंगा भी क्या? अगर मुझे 40 लाख मिला एंड आई एम सीइंग एनपीएस मुझे हर साल 15 से 20% रिटर्न दे रहा है, सो आई वांट टू कंटिन्यू, मेरा 40 लाख मुझे वापस नहीं चाहिए, इस सिस्टम में ही रहने दो ताकि मुझे 1 करोड़ का जो अमाउंट है वो और एक्यूमुलेट होता जाए। तो गवर्नमेंट में उसने और कर दिया, रिलैक्सेशन दे दिया कि ठीक है, अपॉन एक्सिट द रिटायरमेंट एज डिफाइंड बाय द कंपनी, एम्प्लॉय गेट्स द फॉलोइंग फ्लेक्सिबिलिटी, देयरफॉर द एन्युटी इन्वेस्टमेंट इज 63 इयर्स ऑफ एज। आप और 3 साल आगे खींच सकते हो, बट यार 3 इयर्स में भी मेरे को लग रहा है कि नहीं, ये तो लुक्रेटिव स्कीम है, मुझे और रहना है उधर, तो ठीक है, डिफर द कॉर्पस विड्रॉल टिल 70 इयर्स ऑफ एज, 70 इयर्स तक कर दिया। थर्ड ऑप्शन, ये सब आइदर विड्रॉ कॉर्पस इन लंप सम और इन इंस्टॉलमेंट, मैक्सिमम 10, मतलब 10 साल के ऊपर आप नहीं जा सकते, 60 to 70 उसके अंदर ही आपको विड्रॉ करना पड़ेगा, 70s में तो लेना ही पड़ेगा। या तो फिर फोर्थ ऑप्शन, कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन एनपीएस टिल 70 इयर्स ऑफ एज। तो ये इसको मैं संगत करता हूँ, 63 में मैं एलिजिबल हूँ 60% विड्रॉ करने के लिए, बट मैंने 63 इयर्स की एज में मैंने पूरा नहीं उठाया, थोड़ा ही उठाया, 10%, 20%, 30% उठाया और बाकी का 30% ये इन्वेस्टमेंट में ही रहने दिया। सो वो अलाउड है। कहाँ लिखा है वो? थर्ड कंडीशन, विड्रॉ कॉर्पस इन लंप सम और इन इंस्टॉलमेंट्स। 60% में भी मैं इंस्टॉलमेंट ले सकता हूँ, बट वो इंस्टॉलमेंट 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। या कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन एनपीएस टिल 70 इयर्स ऑफ एज, कुछ भी नहीं करना है मुझे तो टिल 70 इयर्स तक मैं इन्वेस्ट रख सकता हूँ। In case the employee opts to defer investment in annuity withdrawal, the amount remains in investment and keeps on growing as per the market. This is a very lucrative. अगर आपको लगता है कि नहीं इन्वेस्ट एनपीएस स्कीम इज गिविंग मी रिटर्न ऑफ 25-30%, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट सपोज एग्जाम्पल कभी हो गया, सो क्यों कोई भी आदमी विड्रॉ करेगा कॉर्पस में, उसके अंदर ही रहने देगा जो उसको अंदर चंक होते रहेगा। पार्शियल विड्रॉवल जो हम लोग बात कर रहे हैं, बिफोर द रिटायरमेंट एज, allowed after 10 years of account opening, but before the retirement, up to 25% of employees' own contribution can be withdrawn. Employees contribution का भी 25% का भी withdraw कर सकते हैं, पूरा भी नहीं, 100% भी नहीं। Another 2 withdrawals after a gap of 5 years after the first withdrawal. This is a very क्या बोलूं मैं, एकदम स्ट्रिक्ट कंडीशन डाल दी है इसमें। सोच समझ कर एनपीएस के अंदर एंट्री लेनी है। ये जो स्लाइड है 10 बार पढ़ना कि 10 साल के बाद ही अलाउड है एग्जिट लेने का। अप टू 25% ऑफ द एम्प्लॉइज ओन कंट्रीब्यूशन कैन बी विथड्रॉन। मतलब वो जो जूना वाला एग्जाम्पल था 2 लाख और 1 लाख, उसमें भी 2 लाख में भी 25% ही एम्प्लॉय का विड्रॉवल, मतलब 50,000 रुपया ही खाली मुझे मिलेगा फॉर स्पेसिफिक पर्पज। अगर सपोज कुछ हो गया लाइक हायर एजुकेशन, चिल्ड्रंस मैरिज, बाइंग होम और ट्रीटमेंट ऑफ क्रिटिकल इलनेस, तो आप आफ्टर 10 years ये 25% का लिमिट नहीं रहेगा, आप पूरा का पूरा विड्रॉ कर सकते हैं। और ये जस्टिफाई करना पड़ेगा बाय वे ऑफ डॉक्टर सर्टिफिकेट एंड सीए सर्टिफिकेट। क्या आप फॉरेन में अगर हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं या कोई क्रिटिकल इलनेस आ गई, तभी ये एनपीएस अथॉरिटी आपको पूरा का पूरा अलाउ करेगी आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन। अदरवाइज बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। कंट्रीब्यूशन फॉर अवेलिंग ऑफ टैक्स बेनिफिट्स अंडर एटीसी टू बी treated as a employer's contribution and withdrawal is not permitted। ये जस्टिफाई कर रहा है कि यहाँ पे क्यों 25% ही रखा, क्यों एम्प्लॉइज ओन कंट्रीब्यूशन ही रखा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्रॉड कर सकता है। यहाँ पे मैं आज एनपीएस स्टार्ट करूँ, एनपीएस स्टार्ट करने का मतलब एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर दोनों का मुझे टैक्स बेनिफिट मिले, ये मैंने दोनों उठा लिया और 10 साल के बाद में उसको स्टॉप कर देता हूँ। इसके लिए गवर्नमेंट ने कंडीशन डाल दिया कि टैक्स बेनिफिट सीसीडी 2 में जहाँ पे कैपिंग भी नहीं था, वो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन
जहाँ पे विड्रॉवल इज नॉट परमिटेड। आप चाह के भी आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे अनलेस कोई इमरजेंसी आ गई है, जहाँ पे ये मेंशन की हुई है। आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा समअप है। पार्शियल विड्रॉवल इज अ टैक्स एग्जेम्प्ट। प्री मैच्योर एग्जिट मतलब 60 ईयर्स के पहले अगर मैं ले रहा हूँ तो 25% ऑफ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन विच इज अ टैक्स एग्जेम्प्ट, and I exit on a maturity मतलब after the 60 years. 40% of the corpus withdrawn income sum is tax exempt. Balance 20%. Employee can take out a balance 20% of corpus by paying tax. उस पे tax भर दो if falling into the tax bracket, या फिर annuity ले लो, either or options. Amount invested in annuity is a tax exempt. जो भी amount invest annuity कर रहे हो exempt रहेगा। एन्युटी से जो पेंशन मिलेगा, पेंशन रिसीव इज ट्रीटेड एज एन इनकम एंड इट विल बी टैक्स एप्रोप्रिएटली इफ फॉलोइंग इन द टैक्स ब्रैकेट। ये पूरे स्लाइड्स का, पूरे एनपीएस का ये समरी है, टैक्स समरी है कि कब क्या टैक्स लगेगा। किसी को डाउट है तो भी पूछ लेना। यहाँ से तो भी टॉपिक थोड़ा डिविएट होगा। तो आगे बढ़ूँ मैं। ओके आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा जो अभी तक हमने जो गो थ्रू किया है। NPS joining age is 22 years, exit age is 45 years. So this is a before maturity, less than the retirement age. Corpus at the time of exit is 10 lakhs. 10 लाख रुपए मेरी NPS की किटी में। 10 लाख में से मैंने अमाउंट इन्वेस्ट इन एन्युटी 8 लाख, 80% अमाउंट मैंने कॉर्पस में डाल दिया। सो अमाउंट अलाउड फॉर विड्रॉवल इज 2 लाख। 20% ऑफ द दिस टाइम लाइक इज ओनली अलाउड। 20% ऑफ द कॉर्पस इज टैक्स फ्री। यही खाली मुझे निकालने को मिलेगा। दिस एग्जाम्पल इज प्रैक्टिकल, जो सबके लिए एप्लीकेबल। 30 lakhs is a corpus of maturity. 30 lakh rupees on a maturity amount invested in annuity 40% of the corpus, मतलब 12 लाख रुपए मुझे मिलने वाला ही नहीं है। 30 minus 12 18 lakh rupees, 60% of the corpus ही मुझे मिलेगा विड्रॉ करने में। आफ्टर दैट 18 lakhs 40% 12 lakh is a totally tax exempt। 12 lakhs पे टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स लगना है तो किस पे? 6 लाख पे लगेगा। तो ये 6 लाख टैक्स अगर बचाना है तो क्या ऑप्शन है? इन्वेस्ट रुपीज 6 लाख इन एन्युटी। ऑलरेडी आप ऊपर का 12 लाख तो डाल ही रहे हो एन्युटी पे, तो ऊपर ये 6 लाख भी उसमें ऐड करना पड़ेगा। अदरवाइज विड्रॉ 4 lakhs इन 10 इंस्टॉलमेंट बिफोर 70 years। ये सब टैक्स प्लानिंग है। लाइक रुपीज 60,000 ईच ईयर, इट विल रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी। डिपेंड्स ऑन योर टैक्स प्लान, आप कितना कौन सा टैक्स में आ रहे हैं। ये 10 इंस्टॉलमेंट्स अवेलेबल। दिस इज आफ्टर द एज ऑफ 60, क्योंकि एग्जिट ऑन मैच्योरिटी।
सो मार्केट के अंदर बहुत सारे पेंशन सर्विस प्रोवाइडर है, लाइक HDFC, LIC, SBI, ICICI, रिलायंस, आदित्य बिरला. Employee can select any of the annuity service provider and annuity scheme to get a monthly pension post retirement. आपको लगता है कि इसमें से कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपके पास ऑप्शन है कि किधर जाना है. चार्जेस, जहाँ पे हमने देखा था 0.25% चार्जेस, these are the very nominal charges. Subscriber registration, contribution processing, annual maintenance, asset servicing, very much normal. Minimum ₹20 and a maximum 25,000 per contribution. ये उसके चार्जेस है 0.25%. वैल्यू प्रपोजिशन फॉर कॉर्पोरेट, अगर कॉर्पोरेट को इसको एक्टिव करना है तो उसके लिए नो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बर्डन, कोई कॉर्पोरेट के लिए एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है. जो भी कर रहे हैं वो तो एम्प्लॉय की सिटी से ही वो खेल रहे हैं. सो नो कॉस्ट ऑफ ज्वाइनिंग, नो नीड टू फॉर्म अ ट्रस्ट, सिंपल प्रोसीजर टू ऐड और रिमूव एम्प्लॉइज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. नो अकाउंट रिलेटेड ऑब्लिगेशंस, जैसे वो PF में है. नो कॉर्पोरेट अकाउंट मेंटेनेंस फॉर एम्प्लॉइज ओनली. एम्प्लॉइज सब कुछ एम्प्लॉइज पे ही है. 4 सिंपल स्टेप से ये रोल आउट होगा NPS. सबसे पहले कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन करेगा, उसके बाद NPS रोल आउट होगा कॉर्पोरेट के अंदर. एम्प्लॉइज रजिस्ट्रेशन फॉर एम्प्लॉइज, मतलब फर्स्ट 2 स्टेप्स अगर कॉर्पोरेट ने कर लिए तो जितने भी एम्प्लॉय बेस है वो उसके अंदर रजिस्टर करेगा. और फिर कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग स्टार्ट्स. फिर एम्प्लॉय प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा. 4 स्टेप्स प्रोसेस है. यहाँ पे अपना NPS का जो भी फंडामेंटल्स कंप्लीट होगा. किसी को कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं कोई भी स्लाइड से. अंकित, कॉर्पोरेट में जब अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वहाँ सिलेक्शन एम्प्लॉय को दिया जाता है क्या, Tier 1 या Tier 2 में करना है? नहीं सर, अगर आप कॉर्पोरेट के अंदर जाते हो हाँ. तो आप कंपल्सरी Tier 1 में ही आओगे, क्योंकि यहाँ पे वो टैक्स बेनिफिट एडवांटेज ले रहे हैं. ओके. टीयर टू में तभी आएगा जब कोई एम वो बंदा काम कर रहा है लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है नहीं उसकी. ओके. तो वो उसके इन्वेस्टमेंट वहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है, नहीं वो 20-30% मुझे दे रहा है, तो आप Tier 2 के अंदर जा सकते हो. आपका एम्प्लॉयर ही अगर रेडी नहीं है करने के लिए तो एम्प्लॉय कुछ नहीं कर पाएगा. ओके. सो कुछ इसमें रिकमेंडेशन है क्या कि व्हाट इज मोर बेनिफिशियल, Tier 1 में जाना या Tier 2 में जाना? Tier 2 टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वी अंडरस्टैंड इट इज फुल्ली टैक्सेबल. आप कुछ राइट ऐसे ही है ना, कुछ आपने वहाँ पे मेंशन किया, नो टैक्स. हाँ. नो सो टैक्स बेनिफिट्स, करेक्ट. सी अभी मैं आपको बताऊं कि अगर आपका बहुत ही हायर सैलरी स्लैब है, एग्जाम्पल आपका CTC 1 CR के ऊपर है, और अगर आप एज पर द न्यू रेजिम की बात कर रहा हूँ, तो लेटेस्ट जो टैक्स स्ट्रक्चर फॉर्म है 1 CR के CTC में, मैं सोच रहा हूँ कि 25 लाख रुपीज ना मैं NPS में डाल दूँ. मैं CTC ऐसे फॉर्म करूँ कि 25 लाख रुपए मेरा NPS में चला जाए, फिर भी उसको टैक्स लगेगा परक्विजिट ऑन एक्विजिशन फंड में, क्योंकि वो 7.5 लाख के ऊपर. करेक्ट. तो फिर Tier 1 भी कुछ काम का नहीं हुआ, पर एक हाथ से तो परक्विजिट लग ही रहा है. तो फिर टैक्स बेनिफिट का तो सवाल ही नहीं है. खाली ये है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूँ तो Tier 2 इज अ वेरी बेनिफिशियल, बोल सकता हूँ मैं. Tier 1 लोअर सैलरी जिनके भी 7.5 लाख का कंट्रीब्यूशन तक है, उनके लिए Tier 1 इज अ बेनिफिशियल. ओके. एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख के अगर अंदर है यहाँ पे,
जो यहाँ 2 लाख था, 50 लाख में 2 लाख था, तो आप ऐसे सैलरी स्ट्रक्चर करिए कि आपका जो भी एज ग्रेशियर फंड है, ईपीएफ, ग्रेजुएट या एनपीएस, सब मिला के 7.5 लाख के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओके। तभी ये एनपीएस बेनिफिशियल है। अदरवाइज तो अगर आप यहाँ पे ही 15 लाख रुपए रख दोगे एनपीएस में, कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूशन एनपीएस 15 लाख, आपको नेट पे आउट कुछ नहीं मिल रहा है मंथ ऑन, और आप उस पर टैक्स भर रहे हैं, हम्म। वो बेनिफिशियल ही नहीं। करेक्ट। तो कंपैरेटिवली यहाँ पर मनी भी तो ब्लॉक हो रहा है ना 58 ईयर्स तक, रिटायरमेंट तक अभी किसको पता है। और ये दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि पैसा आपको नहीं मिलने वाला है, आपके लीगल हेयर को मिलने वाला है। हम्म। तो बेटर तो ऑप्शन म्यूचुअल फंड है मेरे हिसाब से फिर देन इन्वेस्ट करने के लिए। रिटर्न तो वहां पर भी उतना मिलेगा, वहां पर भी लॉन्ग टर्म वो जो बेनिफिट रहता है वो। और सेकेंडली चलो आपका 1 लाख के ऊपर कुछ है ना वहाँ पर लॉन्ग टर्म जो टैक्स रखता है वो, तो अबो 1 लाख के ऊपर टैक्स लगता है, वी अंडरस्टैंड। तो आप पार्शियली पार्शियली विड्रॉ मारते जाओ म्यूचुअल फंड में से पैसे, या फिर दूसरा ऑप्शन मैंने ये भी सुना, इफ यू कैन कवर इन वन ऑफ द सेशन, टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में भी बहुत कुछ होता है। मतलब आप अपने लॉस को करेक्ट। कैसे कर सकते हो या प्रॉफिट को कैसे कर सकते हो दिखाना। तो दैट इज। एनपीएस एनपीएस जो स्कीम है ना, ये एक्चुअली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। गवर्नमेंट ने ये क्यों फ्रेम किया है कि एट द एज ऑफ 60 जब आप रिटायर हो रहे हो ना, तब आप विदाउट कुछ काम किए बिना आपको पैसा मिलना चाहिए, उसका आप अभी से स्टार्ट करो प्रोसीजर। म्यूचुअल फंड आपको ये नहीं देगा। म्यूचुअल फंड अगर एट द एज ऑफ 60 भी अगर आपको बोल रहा है कि आप दे रहा है, इन व्हाट फॉर्म आपको देगा आप ही मुझे बताओ, इन डिविडेंड फॉर्म या फिर इन बाइंग एंड सेलिंग फॉर्म? आपको तो कंटिन्यूस वो एक्टिविटी करना पड़ेगा, बाइंग सेलिंग सब करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड में। ये तो आपको फिक्स रिटर्न देगा ना एट द एज ऑफ 60, आपको कुछ भी नहीं करना है, सब ऑटोमेटेड सिस्टम है, सब गवर्नमेंट ने खुद ने लॉ बना दिए। सो बेसिक फंडा है यहाँ पे एनपीएस का, पैसा कमाने का नहीं है, रिटायरमेंट सेफ्टी का है। आपको उसको म्यूचुअल फंड से कंपेयर नहीं करना है, पीपीएफ से कंपेयर करना है। पीपीएफ भी एट द एज ऑफ 60 मुझे मिलता है, पर वहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हार्डली 7 to 8%। और वो जो इंटरेस्ट है वो टैक्स एग्जेम्प्ट है। यहाँ पे पेंशन भी टैक्सेबल है, दोनों में फर्क है। ओके। सोच समझ कर डालना चाहिए एनपीएस में, अगर कोई जा रहा है तो खाली रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जाना चाहिए कि 15 to 20% मिल रहा है ना, तो चलो अंदर डाल देते हैं। पूरा प्रोसीजर पता होना चाहिए। ये जो 40% 60% जो डाला है, पूरा वहां पे आपकी गाड़ी अटक जाएगी, आपका पूरा फंड ही ब्लॉक हो जाएगा। आपका बहुत ही बड़ा सिटी से है, आपके पास एडिशनल मनीज है, आपका कुछ काम नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ सेट है, घर गाड़ी बंगला सब सेट है, फिर तो जाना ही चाहिए इसका। तो डिपेंड्स कौन से एम्प्लॉयज का क्या स्ट्रक्चर है, कौन सी कैटेगरी में होता है, क्या उसका फैमिली बैकग्राउंड है, क्या उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, फिर उसको कॉल लेना चाहिए कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। नहीं, फिलहाल क्या हो गया शॉर्ट टर्म अभी ऐसा हो गया ना, बिकॉज ऑफ दैट न्यू न्यू टैक्स रेजिम में जो चेंजेस आया कि एनपीएस इंक्लूड कर दिया है, तो नाउ ये थोड़ा बूम हो गया अभी वापस से एनपीएस की। चलो कहीं तो पैसे बिल्कुल, बचा सकते हैं तो चलो उसमें डाल दो, ऐसा हो गया। बट सीटीसी अप टू 1 ईयर वाले आएंगे, 1 ईयर के बियॉन्ड वाले नहीं आएंगे, क्योंकि उनको 7.5 लाख का उसने कैपिंग डाल दिया है। जाहिर है, राइट। वो नहीं था, 2 इयर्स बिफोर नहीं था। जब ये एनपीएस 2011 से स्टार्ट हुआ है, तो 11 से लेके 2021 तक सब लोग ने ऐसा सीटीसी स्ट्रक्चर किया कि मेजोरिटी अमाउंट वहां पे डाल दिया सब। मेरा सीटीसी है 1 ईयर, बट मुझे 99 1 लाख ही मिल रहा है। बट अभी उन्होंने जो फंड ब्लॉक किया होगा वो तो अभी गया है ना, मतलब वो तो आई मीन हाँ रीअलोकेशन कर सकते हैं ना, या सेइंग फाइनेंशियल ईयर में एक बार। वो भी कर सकते हैं, प्लस 60 इयर्स की एज में तो आपको कितना बड़ा किटी हो जाएगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे। और मुझे अगर बिफोर भी विड्रॉ करना है तो इट्स अलाउड ही है ना,
25% तो अलाउड ही है ना, कहाँ नहीं है। हम्म, जो पैसा मुझे चाहिए वो तो मैं विड्रॉ कर लेता हूँ, बाकी का बोले एन्युटी बाय करके छोड़ दूंगा। आप 5% 10% की टैक्स की कैटेगरी में आते हो तो ये एनपीएस कुछ काम का ही नहीं। हम्म, 5% 10% वाला आदमी कैश इनफ्लो ज्यादा के लिए वो ट्राई करेगा। नेट पे आउट जिसको आप बोलते हो, जितना ज्यादा हो सके उतना ट्राई करेगा। एक बार आपने एनपीएस ले लिया, नेट पे आउट आपकी वाट लग गई, मतलब अब आपको मिलने वाला ही नहीं। खाली सीटीसी आपका पेपर पेपर पे दिख रहा है, अब एक्चुअल आप काम कैलकुलेट करोगे तो 50 लाख का सीटीसी नहीं है, 40 लाख का सीटीसी बन जाएगा। हम्म, अंडरस्टूड। और कोई क्वेरी? Yeah, this is Jayaprakash here. या Yeah, my question is on NPS 2. I don't know if this is the forum you want to address. So, shifting funds from NPS 2 to NPS 1 at the age of 60, uh, is it possible? Is it allowed? And what are the tax Yeah. implications? No, there is no tax implication. You have opted tier 2, and now after the age of 60 you want to shift from tier 2 to tier 1, correct? Yeah, so obviously I have NPS tier 1 and I also have NPS tier 2. Then instead of Okay. withdrawing from NPS 2, I want to move it to NPS 1. But what benefits you will get by So- shifting tier 2 to tier 1 after the So I age buy of 60? annuity, right? I am asking a question. I don't know. Yeah. Tier 2 to tier 1 is allowed after the age Okay. of 60. There is Okay. no restriction on that. Okay. But your fundamental aim is to put an annuity or buy annuity. That's why you want to shift from tier 2 to tier 1. Correct. So you can buy annuity in tier 2, no? What is Okay. the main issue? Okay. You don't have to shift. No, from a tax perspective, is there a benefit to move to No, tier no. 1? After the age of 60, there is no tax benefit. Okay. So there is no reason to move to tier 1. I can buy No. annuity. Unless and until government come up with some clarification or some amendments, then we will think on that. But right now, though, there is no meaning to shift from tier 2 to tier 1 Okay. to buy annuity. If you want No, to no. withdraw So it the is- fund, then I can say. So it is not If allowed. you want to, yeah, if you want to withdraw whole amount, say for example, in your kitty, the amount is 60 lakh rupees, and you want to withdraw full amount, 60 lakh rupees, then better to retain in tier 2 because the full amount you can withdraw and there is no tax on that. Sorry, income tax tax on IT slab rate. Okay. Sorry, can you please repeat the last sentence? If you withdraw the complete amount from tier 2. If you withdraw the 60 lakh rupees completely in tier 2, then tax will be levied as per the IT slab rate. See here, tax on withdrawal. Okay. But now if you want to shift from tier 2 to tier 1, then only 60% of the corpus are allowed. But this also, it will not be an exempt amount, 40%. Why? Because all the amounts you have accumulated in tier 2 only. Switching from tier 2 to tier 1, Yeah. tax benefit will not happen. Okay, then it doesn't make sense. Okay, I got it. Yeah. Better to opt annuity in tier 2 only. Okay. And if you share your email address and number, I wanted to understand more about how NRI can invest in NPS. There is no different procedure for NRI. NRI, okay. Yeah, for Indian citizen as well as NRI can enter in the NPS. Okay.
Okay, thanks. And you as an employee no need to do anything. Your employer will do all the procedure. Okay. Okay. Yeah, thanks. Okay, sir. Welcome, sir. Anyone else? No, thanks, Ankit. Welcome, sir. So can we stop here? Yeah, I think. Okay, sir. Thank you, Thank everyone. you. Bye. Thank you. Thank you. Yeah, thanks, Opportune. Yeah. Okay.